ceremony would take place. As you witness the tricolor, think of the ultimate symbol of life. Well, for Indians, it is the tricolor which will chakra. जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। हम सभी को बधाइयाँ। आज इस मौके पे बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, मगर मैं ये समझता हूँ कि कुछ जो हमारी ऑडियंस है, ख़ास तौर से यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनको देखते हुए कुछ चीज़ों का बताना ज़रूरी है या याद दिलाना ज़रूरी है। पिछले साल भी हमने ये किया था, शायद कुछ बच्चे और जुड़ गए हैं। वो चंद बातें ये हैं कि एक हमें सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनना है, अ गुड सिटीज़न, अ गुड पर्सन, जो कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ओके, आर यू क्लियर? लास्ट बॉय देयर। Good. So remember this, and once you follow this, you will be a good individual, a good citizen, and ready for the defense services. So I have this much. I will not bore you much. Thank you very much, and Jai Hind. Thank you so much, sir. Wonderful words. Now, I request Ovesh sir to please grace the podium and spread more words of guidance, kindness, and motivation, sir. You are best at it. Please. Good morning, everyone, and Jai Hind. So on behalf of Doon Indian Defence Academy, I welcome you all to celebrate 26th of January 2023, the Republic Day of India. So I just want to talk a little bit about, there would be speeches, and we have been talking about that why we celebrate 26th of January. So there are few facts which we all should know. As rightly pointed out by Rai sir, हम लोग अभी आज की जनरेशन जो है वो इससे थोड़ा सा दूर भाग रही है, एंड एज अ सिटीजन वी शुड नो हमारे संविधान में लिखा क्या है. वी शुड नो द फैक्ट्स एक्चुअली कि ये संविधान जब बना था तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में बना था. सभी को पता होगा ये चीज़, यस और नो? आई थिंक छोटी छोटी बातें ये पता होनी बहुत ज़रूरी है. जब ये बन के तैयार हुआ था तो इट वाज 26 ऑफ नवंबर 1949. सभी को पता है ये बात, बट लागू कब हुआ था? इट वाज 1950, 26 ऑफ जनवरी 1950 कहते हैं. बट हर किसी नागरिक का ये कर्तव्य है कि उसे पढ़ना चाहिए, बेसिक चीज़ें पढ़नी चाहिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर दिस कमिंग, and thank you Anurag sir to be present part of this program. Thank you. So I was just standing here and looking for the speech which I had prepared, but apparently in the haste to reach the academy at 7, I forgot it. So you people are saved, blessed by the God. And without much ado, I would hand over the stage to the anchors, and I am pretty sure these girls who have prepared really well will take you through a very entertaining and enthralling session. So over to you. Thank you so much, sir. Thank you to all dignitaries. Indeed, the parade gave us a reminder of NDA, IMA, OTA, NA, AFA, and the flag definitely has made us emotional because it is the ultimate symbol of our democracy. आप सभी गणमान्यों को धन्यवाद. परेड में भाग लेने वाले सभी साथियों के लिए मंच से अनुरोध है, जोरदार तालियां हो जाएं. हमारी प्रथम प्रस्तुति है श्री गणेश भगवान की स्तुति लिए एक नृत्य. तो अलौकिक शक्ति से भरी एक मनमोहक प्रस्तुति लिए अब आएंगी
Isha Sharma, student of CDS batch, to present her dance Devashri Ganesha. Let us welcome her with a big applause. भूल गया पॉज करना याद रखना Yo, Isha, welcome Ganpati 2023 style! And turning our nation into a republic, separate from the British Raj. Though the constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. And now, many of you would be thinking why January was given the luxury of holding this day and things, because it was the day when the Declaration of Indian Independence was proclaimed by the Indian National Congress in 1930. Being an Indian, what hurts me the most is the criticism of the people, not just outside of the nation, but as well as inside. We is a tier 2, also to some other reports, considered in tier 3 countries, we are not in a position to declare war. War, I quote, and I mean, a civil as well as international. The last recession which we had hit was not very long ago. It was the year 2020. Yes, I understand that it was a global recession because of the pandemic, but that doesn't gives you an opportunity to defame my nation. Bharat Mata ki Jai! Vande Mataram! Jai Hind! Thank you everyone. Ritika ji, note you singing ji. I am talking about the next performance, which is a solo song by Sushri Shama Priyakar, student of NDA batch, who will move our hearts with beautiful lyrics of the famous song Teri Mitti. Okay, before she begins with her song, I have a couple of questions for her. सुश्री, आप गा भी लेती हैं और कमांड भी कर लेती हैं, कैसे? पैदाइशी टैलेंट है सिर्फ। पैदाइशी टैलेंट है, तालियां इस टैलेंट के लिए। रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। हाय तेरी
गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Sushri, you moved us and inspired us at the same time. We thank you for this melodious performance. और अब आपके समक्ष सीरियस बैच से उत्कर्ष दुबे 26 जनवरी के महत्व पर अपने विचार रखने आ रहे हैं। तालियों से स्वागत कीजिए उनका। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। सोने में सिमटकर हीरो से लिपटकर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। 1857 में देखा गया एक सपना जो 1947 को पूरा होना था, और फिर शुरू हुआ एक सफर भारत देश के लिए एक लिखित संविधान बनाने का। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो बस एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। गुजारिश करूंगा उनसे कि थोड़ा सा अपनी आवाज का जलवा बिखेरे, हमें झूमने पे मजबूर कर दें और हमारे दिलों तक उनकी आवाज पहुंचे। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और आप सब ये महसूस भी करते होंगे कि आप आपस में एक मिनी इंडिया है, एक मिनी भारत है। तो उस भारत को सलाम और करते हैं आगे फिर शुरू प्रोग्राम। ओवर टू द एंकर। आ रहे हैं हमारे सबसे अच्छे नेता प्रथम बैच से। Please welcome Om Singh, Ayush Yadav, Rahul Kumar, Sarthak Pal, Piyush Sisodia, Kaushlendra Shukla and Mrinal to dance on Jalwa Jalwa remix. और अब बारी है हाउ तो फंग टी। अरे अरे मंशिका जी, ये आप किस भाषा में और क्या कह रही हैं? I'm just setting the stage for the next performance, which is indeed different from the others, highlighting the girl power.
And now we would have a tile breaking performance. Let's rise if we are not able to see. They are actually going to break the tiles. Marvelous. Amazing. My biggest dream is to see women empowerment and safety in all areas. It is time to shelve the weaker sex. Who will marry her? Dowry for daughters. And such girl stereotypes. Is it not, girls? Women are much more independent now and can take up their family responsibilities. I see them being the breadwinners and homemaker, being gender non-specific in the India of my dreams. To achieve that dream, however, many things need to be uprooted from India. Female feticide, molestation mentality, and male superiority. In some rural areas, there are still many cases of female feticides, physical attacks endangering women's life. I pray my dream materializes, and I ask you all, are you ready to share my dreams for India? Yes! Are you ready to work towards the making of new India? Yes! तो मैं कह ही देती हूँ जो मेरे मन में अंजलि जी को सुन के भाव आए हैं। मेरी आत्मा की ये अनकही अनसुनी एक प्यास है, सुनना विश्व से कि भारत देश की बेटी कुछ खास है। Since we are discussing girl power some time back, let us have the girl dance troupe to give a thundering performance on the stage. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा गीत का जश्न मनाने के आसमां तिरंगा सजा है शान से सभी को बताने के सारा was created after India got its much awaited independence on 15 August 1947, and it took great efforts from our patriotic leaders to create the world's largest constitution of the nation. The constitution was created under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar and presidential powers with Dr. Rajendra Prasad. It took 2 years, 11 months and 18 days before adopting the constitution. The constitution was signed by 284 members of the Assembly on 24 Jan 1950. It was then on the 26th Jan 1950 when India got the pride to be a republican nation with its Indian Samvidhan came into existence. So friends, let's dwell some of the facts about the Indian Constitution. Some of them are the fascinating and some are truly amazing. So the first one is, I don't know that. अब तो पता चल गया होगा सबको, और कम से कम इसके लिए तो हम कह ही सकते हैं, रुक जा नोट कर लूँ कहीं यूपीएससी के पेपर में ना आ जाए। Smart move, Ritika. यूपीएससी तो नहीं, पर अब मैं पूछती हूँ आपसे, पिथासा शब्द किस प्रदेश से हैं? Are we talking about Northeast? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ असम की मनमोहक छटा की, जहाँ चाय जितनी ही ताजगी से भरे लोग रहते हैं। नकली है ना वो? यार ये ऑन नहीं हो रहा। यहाँ से हो गया। ये अच्छा था।
Yes, we are talking about the land of mystery expressions, words, music, creativity and dance all included. परंतु अगली प्रस्तुति न गीत है और न संगीत है, तो हमें शब्दों से बंगाल यात्रा कराने आ रहे हैं शांतन शाह। Good morning everyone. I am Shantan Shah. Today to take you on a journey through my words on Amar Sonar Bangla. West Bengal. It is written with using the indigenous Bengali alphabet. The Bengali is the 5th most spoken language in the world. The history of West Bengal began in 1947 when the Indian gained independence in 1947. Bengal was partitioned along the religious lines till the British gained ascendancy. Many major rivers flow in the state like Dwakashar, Mayurkashi, Khansai, Padma and Jalangi. The Bengal tiger is the national animal of India and the state animal of West Bengal is fishing cat. Amazing journey to Bengal. Shantan, we indeed felt it. We felt as if we traveled through the history of the great Bengal. तो एक बार फिर से आप सबके सामने आ रहे हैं इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति बनके Pratham batch dance group gang of guys dance. कहते हैं हमको प्यार से दिया वाले, दिल के तार से दिया वाले, शिकवे हाल से दिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम दिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम दिया वाले। चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा मुंडे नच दे बन के इंडियन। Now I can't hold my words. लग दे गबरू स्वैग में। Wow, you switched to Punjabi before leaving. जी हाँ, और इस मंच से जाने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबको हृदय से धन्यवाद। You conducted the stage very well, all the participants. So how was it, people? Did you enjoy it? Yeah. Wonderful. So now it's time to enjoy more. I'll be handing over the mic to the second anchoring team, which would be. ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, जियो तो बस वतन के नाम पर। और आप सभी से निवेदन है कि एक एक पर्ची उठाएं और एक एक पर्ची उठाएं जिससे हमें आज के सभी स्टार परफॉर्मेंस मिले। मैं पुरु सर से निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया वो पर्चियाँ मुझे प्रदान करें। हम सब की प्रिय अस्मी मैम को बुलाना चाहूँगी और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि उनको मंच तक लाने में मेरा साथ दे। तो थैंक यू ऑल फॉर चेयरिंग मी अप। मैंने इससे पहले कोई ऐसा परफॉर्मेंस तो नहीं किया, पर लेट मी सी, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि ये जो मैं आपके सामने ये एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जो मैंने अभी 2 दिन पहले ही लिखी है, बट मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आप सबके सामने रख रही हूँ इस कविता के रूप में।
अम्मी हो या माँ, प्यार तो कभी नहीं बटा। अब्बा हो या बाबा, सम्मान तो कभी नहीं घटा। खुदा और भगवान के नाम पे फिर ये कैसी जंग है। अल्लाह से करूं इबादत या ईश्वर की करूं पूजा, तो ये कैसा शोर है। धर्म भले ही अलग है पर मोहब्बत से परे नहीं। नमस्ते हो या सलाम, प्यार किसी में कम नहीं। मैं ख्वाब देखूं या तुम सपने बुनो, दुनिया सबकी एक ही है। कितना भी अलग करने की कोशिश कर लो, इंसान आज भी एक ही है। For every man needs a place on earth to call his very own, and every person of whatever birth rejoices on the way back home, isn't it? Yes, ma'am. Thank you. So यही कुछ लाइंस थी, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। Thank you all. Wonderful lines, ma'am. Definitely applaudable and definitely नाम कुछ भी हो, भाषा कोई भी हो, मतलब और भावनाएं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैंने जैसा कि पर्चियाँ दे दी थी, तो अब क्या करना है इन पर्चियों का? सभी पर्चियों में जो भी नाम लिखे होंगे उनको मंच पे बुलाना है। बुलाना है। चलिए, ये पहला तो कराना क्या है? कविता, गीत, मिमिक्री या जिस भी कार्य में वो निपुण है। तो मतलब ये मैं बताऊंगा कि उन्हें क्या करना है या उनके पास फ्रीडम होगी, वो चूज कर सकते क्या? उनकी फ्रीडम है। अच्छा, उनकी फ्रीडम है। Yes. तो आप सभी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी में से अगर किसी का भी नाम आता है पर्ची में, कृपया करके मंच तक आएँ और अपनी कला का प्रदर्शन करें। तो पहला ही नाम जो है बहुत ही ज़ोरदार है। हिमानी मैम, प्लीज़ वेलकम हर विद अ बिग अप्लॉज। इनके बारे में मैं बता दूं, अब ये क्या करना चाहती है ये जानती है, परंतु ये गायिका बहुत अच्छी हैं, सुर बहुत अच्छे हैं, ताल बहुत अच्छी है। बाकी सर साथ देंगे ऑडियो सिस्टम से, तो और ज़बरदस्त समा बन जाएगा। मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आई वांट टू विश अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल, है ना। सो टुडे आई एम नॉट गोना सिंग एनीथिंग। पिछली बार थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस था, दैट्स व्हाई। सो अभी जो है दिस टाइम अभी सभी ने जो है कल्चर रिप्रेजेंट किए पूरे ऑल ओवर इंडिया के, एंड सभी ने कुछ ना कुछ टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं, है ना। एंड एक श्लोक है कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी कि जिस व्यक्ति के पास जो है गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है, कला नहीं है, वो इस धरती पे जो है पशु के समान है। तो आप सभी लोग तो मल्टी टैलेंटेड है ना। आई कैन सी कई सारे पार्टिसिपेंट हैं जो डांस भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं और लीड भी कर रहे हैं ना। सो दैट्स सो गुड, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। एंड नाउ सर ने कई चीज़ें हाईलाइट की अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट अब तक का। सो इसमें जो है काफ़ी स्ट्रगल इसके पीछे थी, जो मैंने लास्ट टाइम भी हाईलाइट किया था आर्टिकल 51A। आज काफ़ी लोगों ने उसके बारे में, ग्रुप कैप्टन सर ने उसको हाईलाइट किया। दैट इज़ सो गुड, क्योंकि हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है रिमाइंड करवाई, और दैट्स वाई मैं अप्रिशिएट भी कर रही हूँ। सर ने कहा पार्टिसिपेट करना है सोशल इवेंट्स में। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट? Is this singing song. ऐसे कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग तो नहीं है सर, तो कुछ भी गीत चलेगा, कोई भी गीत चलेगा। कार्यक्रम जो है ये सेकंड पार्ट का है, या कोई भी गीत चलेगा। ठीक है। सो मैं अपना एक जो मैं यूजुअली गुनगुनाती रहती हूँ जो गाना, वो मैं गाना चाहूँगी। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके शबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली
जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you for obliging. Well, thank you so much for obliging, ma'am. कुछ इनकी तारीफ में कहना चाहेंगे आप? मैम, आपके सुरों ने हम सभी का यहाँ मन मोह लिया है। धन्यवाद। और हमें पहुँचा दिया है हमारे उम्र के गानों में। तो जो सीनियर स्टाफ है यहाँ पे वो डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगा। दिस इज़ अ वंडरफुल सॉन्ग एंड डिनोट्स that it doesn't matter we exist or not, right? We exist with our karma, our thoughts forever. To become immortal, all you need to do is have great thoughts and implement those into action. तो चलिए अब क्या दूसरी पर्ची का समय हो गया? चलिए इस पर्ची का नाम आप अनाउंस कीजिए। तो नाम जो निकला है वो बहुत दूर तक जाएगा और इस वक्त इस मंच पे नवीन सर का जलजला आएगा। आइए सर, आइए। आप सभी लोगों को 74वें गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, रिस्पेक्टेड राय सर, पुरु सर, ऑल फैकल्टी मेंबर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिजिक्स में एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शायद 10th में भी ये सिलेबस में है, तो सभी लोग इस चीज़ से वाकई परिचित हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। जब कोई फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से बार बार चेंज होता है तो एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है। यहाँ पे भी कुछ आपको सीखना चाहिए। लगातार यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे अंदर तो एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई कि हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों के अंदर भी ऐसी एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हुई होगी। लेकिन ध्यान रहे, आपको लेंज लॉ को फॉलो नहीं करना। लेंज लॉ क्या कहता है कि वह उस इंड्यूस करंट का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो जनरेट हुई। तो आप ऐसा अपोज ना करें कि जिसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन आया है, आप उसी मोटिवेशन को खत्म करना चाहते हैं। जाते जाते बस 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, आ नहीं सकता कोई सौला हवा के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। चेक कर लूँ, अगली बार तो थ्योरम ही पढ़ा देंगे अगर दीवान सर का नाम आ गया तो। क्या सो इस बीच क्षेत्रीय सर से पुनः निवेदन है कि एक गीत अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, और आप सभी से निवेदन है शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक आनंद ले इस प्रस्तुति का। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। कोई नहीं, आ गया।
हम तो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। हम तो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। खुशियों से आबाद है अपने घर का कोना कोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में। नन्हे मुन्ने जैसे तारे लंबी रातों के, बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में। ऐसा सुंदर है ये जीवन जैसे कोई सपन सलोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी नाम में हर उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। थैंक यू। बहुत खूब सर, आपकी आवाज़ ने हमें बताया कि हंसना कितना ज़रूरी है। आप में से कोई अगर इंटरव्यू सेशन में बैठा हो राय सर के या मेरे साथ, तो स्माइल का एम्फेसिस हम लोग करते हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज द स्माइल चेंजेस योर प्रेजेंटेशन, सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और इसी स्माइल के साथ अब नेक्स्ट पर्ची जो इन्होंने मुझे दी है उस पर एक बहुत ही अच्छा नाम है, आप ही अनाउंस कर दीजिए। बहुत अच्छा नाम है। तो अगला नाम है जुनैद सर का, तालियों से स्वागत कीजिए। सर सर ये बड़ी सरप्राइजिंग था कि मेरे को एकदम बुला लिया पर कोई बात नहीं। जैसे आज बात चल रही है, गणतंत्र दिवस है, तो उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हर कामयाब लोगों को तो सब जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कामयाब नहीं हो पाते। तो मैं उनके लिए कुछ एक ऐसी चीज़ 4 पंक्तियाँ गुनगुनाना चाहूँ कि वो हिम्मत ना हारा करें। ठीक, तो उनके लिए कुछ लाइनें हैं। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा ज़मीन पर, ख्वाबों में उसके बादल ही थे वो कहता रहा मगर कि अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। थैंक यू सो मच। बेहतरीन, बहुत ही ताज़ा तरीन। चलिए अब नेक्स्ट चिट भी आप ही पढ़ दीजिए।
अगली प्रस्तुति लेके आ रहे हैं हम सब के प्रिय दीवान सर। तालियों से स्वागत कीजिए। सर कृपा कीजिएगा, थ्योरम मत समझाइएगा ना, डेरिवेशन कराइएगा। हेलो, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वैसे तो कभी आज तक ऐसा मौका आया नहीं है कि आगे जाके कुछ गाना पड़े, तो गाने के तो लिए ऐसी मेरी आवाज़ इतनी खूबसूरत है नहीं, क्योंकि मैथ इसीलिए पढ़ाई क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक्स को ध्यान न रखते हुए हम वाई की तरफ चलते हैं आज, और स्टार्ट एक्स, क्योंकि जैसा माहौल है उसी हिसाब से शायरी भी है। एक ज़्यादा आता नहीं है शायरी में, बट थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, आप में से ही बहुत सारे आशिक हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी उस पद पे आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। आने वाले टाइम पे आपका पेपर भी है, बट अभी भी आप उस स्तर पे है। तो जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नोटों में लिपट कर और सोने में लिपट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए यही बोलूँगा कि आशिकी से थोड़ा दूर रहें और पढ़ाई पर फोकस करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत ही बेहतरीन सर। तो अब कौन है? अब चिट तो खत्म हो गई है सारी, अब आगे का ट्रेनर पुरुष संभालेंगे। धोखा धोखा। तो सर ने जैसे कहा एक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही डिफाइन करती है कि आप कितना ज़िंदगी में आगे जाएंगे। मतलब इंस्टीट्यूशंस जो आपके एक्स इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने आपको बनाया, फिर अब आप दूर इंडियन डिफेंस अकेडमी, फिर यहाँ से आप सिलेक्शन में जाएंगे, फिर हम एक्स हो जाएंगे आपके, समथिंग लाइक दैट। कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, भूल गया, निकल गया मुँह से। तो चलिए एक्स पे कुछ बोलता हूँ। तो अब प्रॉब्लम ये है, अब आप लोग रिकॉर्डिंग्स डाल देंगे तो फिर देखिए, डर एक शादीशुदा इंसान को क्या होता है कि बात निकलेगी तो घर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो घर तलक जाएगी, और अब उम्र इतनी हो गई है कि माँ हल्दी भी ना लगाएगी। तो बस उसी बर्बादी से डरता, तो प्लीज़ ये वाला पार्ट एडिट करके मतलब इसे हटा दीजिएगा, इसे मत डालिएगा। तो एक्स के लिए तेरी अदाओं पे मरता हूँ, बहुत आगे जाएगा लड़का। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, घर में जो बैठी है उससे डरता हूँ। और जो पिछले 4 दिन एंकरिंग के रहे उसमें एक गीत बना पाया, वो गीत थैंक्स टू डीडी बन पाया है, क्योंकि इनके द्वारा कहे उच्चारित शब्दों से वो बना है। प्रस्तुति ने प्रस्तुति को प्रस्तुत किए, प्रस्तुति की प्रस्तुति को हम जिए। तो अब ये प्रस्तुति इतना फेवरेट वर्ड था डीडी का कि वो इतनी बार आया कि मेरे दिमाग में आते जाते जो है यही बस 2 लाइनें गूंजती रहती थी। और गायक मैं हूँ नहीं, पढ़ाने में आप जानते हैं ज़्यादा कुछ आता नहीं है, पर डांटना बहुत अच्छे से आता है। अब आज की लास्ट परफॉर्मेंस में मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा अपने एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट को, जो आके यहाँ थोड़ा बहुत कुछ बताएगा और हमें थोड़ी दिशा दिखाएगा। कुन्नत प्लीज कम ऑन स्टेज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज कुन्नत कुमार। मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जैसे सर का प्रश्न था कि आपका यहाँ पे पिछले 7-8 महीने में आपका परफॉर्मेंस नहीं कह सकते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आने से पहले मैं काफ़ी थोड़ा वीक था, थोड़ा बदमाश था, काफ़ी जगह टाँके भी लग चुके, पहले काफ़ी वार्निंग लेटर भी पहुँच चुका है मेरे घर तक। लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। कोई घर का लड़का कोई गली में लड़ता हुआ यहाँ तक पहुँच जाए
लेकिन कुछ तो सीखा हूँ यहाँ पे। मुझे अंदर से फील आता है, कभी कभी एनर्जेटिक में फील होता हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है जब पुरु सर कभी डांटते हैं, हल्का गुस्सा भी आता है लेकिन बाद में अच्छा लगता है कि अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे कि कुछ समय पहले डायरेक्टर सर ने कहा था कि किसी ने भी रोड पे वो रहता ना लाइट सर, जो ट्रैफिक लाइट फॉलो नहीं करता, स्पीड फॉलो नहीं करता, लेकिन पुरु सर करते हैं, जैसे डायरेक्टर सर ने कहा। ये बात भी मेरा दिल छू लिया। जैसे कि हाँ, काम डाउन। मैं पहले मूवी भी देखता था, जैसे कोई एक साउथ इंडियन मूवी था, उसमें एक आदमी रहता है जो काफ़ी रूल फॉलो करता है, काफ़ी एकदम सिंपल वे में चलता है। लेकिन जब डायरेक्टर सर ने कहा पुरु सर के बारे में, तो पुरु सर के में वही राय आ गया। सुपर इम्पोर्ट हो गई। मेरे ख्याल से धीरे धीरे जिस समय कहा सर ने, डायरेक्टर सर ने, ऐसा लगा कि मोटिवेट करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, और एक हीरो होता है लाइफ में आपके, तो पुरु सर ही हैं। ऐसे यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा छेत्री सर को भी, जो हमें काफ़ी अच्छा चीज़ बताए हैं, काफ़ी अच्छा रूल बताए हैं। काफ़ी आर्मी में क्या होता है वो हमें काफ़ी एक्सप्लेन भी करते हैं, हर वक्त हमें सही दिशा भी दिखाते हैं। और ख़ास करके तो मैं पुरु सर को ही कहूँगा सब चीज़। थैंक यू एवरीबॉडी। पुरु सर लगता है गुस्सा हो गया मुझसे। थैंक यू कुंदन, वंडरफुल। ओके, अब क्या करेगा, मक्खन ज़्यादा हो गया इसलिए आपको रोकना पड़ा। डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा तला भुना और मीठा खाने के लिए, राइट? सो व्हाट ही मेंशन दैट लाइक with his experience we can make out that we are trying our best to give direction to students। और जैसे ही इन्होंने कहा कि एक साउथ इंडियन मूवी में हीरो होता है, तो मुझे लगने लगा मैंने ब्लेजर और ये नहीं कुर्ता और धोती पहनी है। ये नडा उनके तेरियद नहीं है, यंग पे पूरू ट्रेन पूरू। So wonderful, thank you Kundan, and I'm very happy, very touched कि अगर डांटना छेत्री सर का मेरा आपको सही दिशा में ले जाता है, तो हमारा खुद का खून जलाना सफल है, खुद को हानि पहुंचाना सफल है। और अंत में मैं डायरेक्टर सर से विनती करूंगा एक बार मंच पर आए, और आज का कार्यक्रम कैसा रहा, बच्चों की मेहनत उन्हें कैसी लगी, प्लीज एक बार बताइए सर। लेट्स वेलकम हिम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you, sir. So, I was watching the entire show today and feeling very proud that I am part of the owners of this academy who give their 100% efforts. Not only students who participated, but मैं उन लोगों को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने ये परफॉर्मेंसेस यहाँ पे हमारे सामने तैयार होने में मदद करी। द कोऑर्डिनेटर्स, जिसमें सबसे पहला नाम अगर मैं लूँगा तो बाकी लोगों को पार्शियलिटी लगे, बट आवर ओन छेत्री सर। बीइंग अ वार्डन, इनकी सिर्फ एक वार्डन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर मैं काम को देखूँ तो, बट ये इंसान एक मैंने ऐसा देखा है इस एकेडमी में जो आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके बच्चों को ट्रेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंसेस जो आपने देखी, आई थिंक couple of performances were being under guidance of sir। दूसरे एक और ऐसे शख्स हैं, कहाँ है, दिख नहीं रहे मेरे को, जेसीओ सर। A very big applaud for him also। और यही शायद डिफरेंस है एक नॉर्मल सिविलियन में और एक फौजी के अंदर, कि फौजी ये चाहता है कि वो अपने जैसा सबको बनाए, और जिस दिन आप लोग सब इस तरीके से बन गए तो आई थिंक ये देश कुछ अलग ही दिशा में चला जाएगा। एंड ऑल अदर कोऑर्डिनेटर्स, साक्षी मैम जो अभी अपने बच्चे को लेके काफ़ी उलझी हुई है इधर उधर, लेकिन आप लोगों को उसने काफ़ी अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है। एंड निधि मैम जो कोऑर्डिनेट कर रही थी इस इवेंट के अंदर, आई थिंक अश्मी मैम, and least like
the most important person of this entire program, entire academy, trainer Puru sir. Let's give him a very big applause because इनके अलावा इस तरह का इनिशिएटिव लेना, इस तरह का कॉन्फिडेंस रखना, इस तरह की कौन सी भाषा बोलना, पता नहीं सर ने कौन सी बोल दी थी यहाँ पे अभी, या सर की खुद की बनाई हुई थी वो, अच्छा तमिल. सो इस तरह का कॉन्फिडेंस और टैलेंट वाकई में काबिले तारीफ है. एंड इन दी एंड वी वांट एज अ अकेडमी दैट यू ऑल गाइज, देखिए सिलेक्शन और रिजेक्शन इज अ डिफरेंट स्टोरी. आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे ये आपके कर्म पे, कुछ भाग्य पे, कुछ आपकी किस्मत पे, सब पे डिपेंड करेगा. बट हमारा एक मात्र जो यहाँ पे लक्ष्य है, जो एक ऑब्जेक्टिव है या कुछ भी कह लो उसको, कि हम आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू क्रिएट अ वेल ह्यूमन बीइंग इनसाइड यू. तो जो अभी कुन्नत आके बोल रहे थे कि सर को मैं तब से बहुत ज़्यादा क्या बोल रहे, पसंद करने लगा हूँ या कुछ तो बोला उन्होंने, पुरु सर को, है ना, प्यार करने लगा हूँ शायद, है ना. तो उसके ऊपर एक छोटा सा, क्योंकि मेरी एक हैबिट है या जो भी कुछ कह लो, मैं स्टैंड अप कॉमेडीज़ बहुत देखता हूँ, डेली सुबह तो देखता ही हूँ, है ना, स्पेशली जब वॉशरूम में बैठा होता हूँ मोबाइल के साथ में. और कभी कभार मुशायरा या इस तरह के भी देख लेता हूँ. बट मुझे बहुत वो सीरियस और प्यार में खो जाने वाले अच्छे नहीं लगते. थोड़े से फ़नी हो तो थोड़ा दिन अच्छा शुरू हो जाता है. ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है ज़िंदगी का. तो एक जाकिर खान को सब लोग जानते होंगे शायद से, है ना, तो वो अच्छी रोमांटिक कॉमेडी भी करते हैं, बट वो फ़नी कॉमेडी भी करते हैं. तो उनका एक महफिल शायरा मुशायरा ऐसा कुछ करके है, उसका एक ये है, अपनी उम्र वालों को मैं आप कह रहा हूँ, है ना, गौर फरमाइएगा, अपनी उम्र वालों को मैं आप कह रहा हूं और उनकी बेस्ट फ्रेंड को आस्तीन का सांप कह रहा हूं, है ना, और उनकी बेस्ट फ्रेंड को आस्तीन का सांप कह रहा हूं. उठा के फोन लगा दिया हमने और कह दिया जानू आई लव यू. उठा के फोन लगा दिया हमने और कह दिया जानू आई लव यू. उधर से आवाज आई जानू नहीं, जानू का बाप बोल रहा हूं. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस डे. Thank you so much for the praise and 3 cheers for all the participants. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Wonderful. Well, Sir. should we end the session? सर, एंड करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि कृपया त्रिशा बोरो को आप स्टेज पे आने का मौका दें. बिल्कुल त्रिशा जी और आइए. उनको उनका गीत प्रस्तुत करने का मौका दें. इनका नाम टैलेंटेड त्रिशा होना चाहिए. कागज के 2 पंख लेके पूरा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला है रे. उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे, कि देखे न भार न जाने न दाए रे. दिशाहारा क्या मन बोका मन तारे, कागज की 2 पंख लेके पूरा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला है रे. उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे, देखे न भारे न जाने न दाए रे. दिशाहारा क्या मन का मन तारे, फतेह करे किले सारे भेत जाए दीवारे, प्रेम कोई सींध लागे, अगर मगर पाली पाली जिया कोई उछाले, जिया नहीं गेंद लागे. माटी कोई छंदन सा माथे पे सजाए रे, जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे, देखे न भार न जाने न दाए रे. दिशाहारा क्या मन बोका मन तारे. थैंक यू. Melodious but
जितना मेलोडियस था उतनी आपने तालियां नहीं बजाई, प्लीज। थैंक यू। तो अभी सर रिक्वेस्ट फॉर वन लास्ट परफॉर्मेंस सर, एक लास्ट परफॉर्मेंस करा लें सर। अभी यहाँ पे परम मित्र ऑफ ईशा जी श्री अंजलि जी कह रही थी कि ईशा जी को भी मौका दिया जाए, तो इतनी अच्छी साज सज्जा में है तो उन्हें बिल्कुल मौका दिया जाना चाहिए। तो कोट को त्याग दें और आ जाए यहाँ पर। एक मेरा यारा एक उदियारी, यही अरदास है मेरी। वो ही मेरा सच है, वो ही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाउणा आउंदा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। आपा बस सीखे यारी निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे। खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे, मैर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। हो यारी दाए है सास हमेशा, दिल विच जिंदा रहेगा। तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूल से भी कोई भूल हुई हो तो यार वे उसे भुला के तू एक बारी गले लग जाने देना। एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, मेरी मनदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। थैंक यू। Very musical. Thank you. सर जी सर प्लीज आइए। So wonderful song, wonderful and सर इनकी एक फोटो पक्का लीजिएगा आज फंक्शन के एंड में। वंडरफुल फ्रेंडशिप, वंडरफुल इमोशंस, और आप तालियों से स्वागत कीजिए ग्रुप कैप्टन राय सर का। थोड़ा रुआसा से हो गए थे इसके गाने से, इसलिए हमने कहा कि कुछ बताएं आपको। ये अच्छी एक कविता है, पढ़ता हूँ, मज़ा लीजिएगा इसका। और हालांकि अब तो जाड़ा जाने पे है, ठंड ख़त्म हो रही है, मगर फिर भी तो ये कविता उस ठंड के लिए है। वीर तो मरे रहो, वीर तो मरे रहो, रजाई में पड़े रहो, चाय का मजा रहे, पकौड़ी से सजा रहे, मुंह कभी रुके नहीं, खाते रहिए, मुंह कभी रुके नहीं, रजाई कभी उठे नहीं। वीर तुम मरे रहो, रजाई में पड़े रहो, लताड़ हो बाप की या बाप की दहाड़ हो, लताड़ हो बाप की या बाप के भी बाप की। तुम निडर डटो वही, रजाई से उठो नहीं,
वीर तुम अड़े रहो डीडा के वीर, वीर तुम अड़े रहो रजाई में पड़े रहो, मुंह गरजते रहें, मुंह गरजते रहें, यानी लोग आपके आसपास चिल्ला रहे हैं, डंडे भी बरसते रहें, मुंह गरजते रहें, डंडे भी बरसते रहें, दीदी भी भड़क उठे, चप्पल भी खड़क उठे, पर वीर तुम अड़े रहो रजाई में पड़े रहो। इन चंद पंक्तियों के साथ समापन। धन्यवाद। Thank you so much. That was definitely spirit of unfortunately some of the students here. कुछ की स्पिरिट सच में ऐसे ही है सर, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कुछ तो छात्र हैं, क्योंकि साक्षी मैम अक्सर सुबह सुबह कुछ को डांट रही होती है कि लेट क्यों आए, ऐसा कुछ लोगों के साथ तो होता है, सबके साथ नहीं, कुछ के साथ तो ऐसा होता है। तो वो भी इसी कविता को शायद अपने जीवन में उतार चुके हैं और शायद इसीलिए उनको साक्षी मैम की डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका कहना है तुम निडर अड़े रहो, अड़े रहो रजाई में पड़े रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So, दीदी एनीथिंग मोर? नहीं अब। ओके, तो अब मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सबका फॉर बीइंग सो पेशेंट, सो डिसिप्लिन, स्पेशली लक्ष्य बैच, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। आप आए यहाँ तक, आपने इस प्रोग्राम में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छे दर्शकों की तरह आप बैठे रहे। एंड टू रेस्ट ऑफ दोज हु केम इन टुडे एंड पार्टिसिपेटेड, थैंक यू सो मच। However, before ending and proceeding with sweets, I want to request sir, क्षेत्री सर, कोई ऐसा सॉन्ग है जिस पे हमारे ये छात्र कुछ नृत्य कर सके, शायद जलवा जलवा ही। So an open invitation to all of you to dance on Jalwa Jalwa. कहते हैं